Hi guys, welcome to CPP Hack. Today we're going to start a new video series on the topic graphs. And I have seen that generally people fail in this topic and students are not really confident while attempting the questions of graphs. So we are going to start and जो भी doubts आएंगे आगे आगे देखेंगे. Graphs का best part ये है कि there are only a basic set of questions that and concepts that you have to study and advanced questions उन्हीं पे based होते हैं. So अगर आपको एक basic set of questions अच्छे से आ जाता है then you are good to go and आप advanced questions try कर सकते हो. So basic concepts मैं पहले आपको बता देती हूँ before starting. One is BFS, DFS, which are the traversal of the graph. Then comes bipartite graph, which is also popular as graph coloring problem. Then there comes connected components. Questions relating to path. This includes the questions like single source shortest path, or find whether a path exists between a source and a destination, or the shortest path between one city to another. Questions like that, and we'll be covering those. Then there comes cycle detection, and the concept of cut vertex and edges. Then there is Prim's algorithm, then Kruskal's, then there is Dijkstra, Tarjan's algorithm, and Kosaraju's algorithm. I don't know how to pronounce this word. Kosaraju's algorithm. Yeah, so we'll be covering all these topics, and if I have missed something then I'll just discuss it in further videos. Right, so now talking about the implementation and representation of graphs. So there are two ways a graph can be generally represented. One is adjacency matrix. Second is adjacency list. First we'll talk about adjacency matrix. So what happens in the adjacency matrix is that if there are n nodes, then a 2D matrix of n cross n is allocated for the representation of the graph. Now let's say n is 4 here, so there are 4 nodes, and a 2D matrix of 4 cross 4 will be allocated for the representation of the graph, and nodes will be 0, 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3. Now wherever an edge exists, उन दो nodes के बीच में we'll put a 1, otherwise we'll put a 0 in the matrix, which represents कि इन दोनों nodes के बीच में edge नहीं है. So if the graph is 0, 1, 2, 3, then 0 and 1 have an edge, and 1 and 0 have an edge, and 2 and 3, and 3 and 2, and the rest all of them will be 0. This is how you represent an adjacency matrix. So इस approach की disadvantage ये है कि a lot of space is wasted. आप यहाँ पे इसी example में देख लो कि there are only 2 edges and आपको 4 cross 4 space लग रही है इन दो edges को represent करने के लिए. So that is why ये वाली approach ज़्यादा prefer नहीं की जाती. Adjacency list is a better approach and is most commonly followed while representing graphs. So adjacency list में there is basically a vector, an array of vectors, and n represents the number of nodes. So here I'm taking an example of 4 nodes. So a vector in graph 4. So आपके पास 4 vector arrays हैं, so 0, 1, 2, 3, and यहाँ पे आप स्टोर करते जाओगे इनकी किन किन नोड्स के साथ एजेस हैं. सो यही एग्जांपल में 0, 1, 2, 3, 0 के पास सिर्फ 1 की इंफॉर्मेशन होगी, 1 के पास 0 की, 2 के पास 3 की, एंड 3 के पास 2 की. राइट, सो आपने इतनी कम स्पेस में
you have represented this graph एंड इसी में अगर 0 एंड 2 के बीच में एज होगी तो आपके पास आपके जीरोथ वेक्टर में 1 के साथ साथ 2 नोड भी आ जाएगा, 2 नोड में 3 के साथ साथ 0th नोड भी आ जाएगा, रिप्रेजेंटिंग कि 2 एंड 0 के बीच में भी एज है. सो आई होप आपको इम्प्लीमेंट जो रिप्रेजेंटेशंस हैं ये आपको क्लियर हो गई हैं. नाउ वील टॉक अबाउट द DFS ट्रावर्सल, which is depth first search. DFS ट्रावर्सल में क्या होता है कि यू स्टार्ट फ्रॉम द रूट नोड और जौन सी भी नोड का आपको DFS ट्रावर्सल निकालना है, एंड उसके बाद आप इसके चाइल्ड पे गए, से 2 पे गए आप, देन यू विल बी ट्रावर्सिंग द चिल्ड्रन ऑफ सेकेंड नोड अंटिल ये पूरी नोड ख़त्म नहीं हो जाती. तो जौन सी नोड पे आप आओगे आप पहले उसका सारा ट्रावर्सल ख़त्म करोगे, देन यू बैक ट्रैक टू द रूट नोड एंड देन आप उसके बाकी चिल्ड्रन को ट्रावर्स करते हो, राइट. सो इस एग्जाम्पल में 1 के बाद 2 पे आए आप 2 के आगे कोई नोड है नहीं तो यू बैक ट्रैक, देन यू कम टू द नोड नंबर 3 एंड आप यहाँ से पहले 4 पे गए, फिर आप बैक ट्रैक करके 5 पे जाओगे, 5 से बाद में आप 6 पे आओगे एंड देन यू गो बैक टू 5 एंड देन आप 7 को ट्रावर्स करोगे, राइट. सो DFS की इम्प्लीमेंटेशन के लिए यू फर्स्ट मेक एन एरे, विजिटेड एरे, जिसमें हम स्टोर करेंगे कि एक नोड को हम लोग ट्रावर्स कर चुके हैं या नहीं. सो इनिशियली विजिटेड एरे में सब जगह 0 होगा. इसकी एडजेसेंसी लिस्ट बना लेते हैं. सो दिस इज़ द ग्राफ. इसकी एडजेसेंसी लिस्ट ये होगी. 1 के पास 2 एंड 3, 2 के पास सिर्फ 1, 3 के पास 1, 4, 5, 4 के पास सिर्फ 3, 5 के पास 3, 6, 7, 6 के पास 5 एंड 7 के पास भी सिर्फ 5. इनिशियली विजिटेड एरे में हर जगह 0 है. सो यू स्टार्ट फ्रॉम रूट नंबर 1, राइट. तो आप 1 पे सबसे पहले गए, उसका विजिटेड आपने 1 कर दिया कि यू हैव ट्रावर्स दैट नोड. उसके बाद यू गो टू 1's चिल्ड्रन. सो 1 का चाइल्ड कौन सा है आपके पास? 2. सो आप 2 सेकेंड नोड पे आते हो, सेकेंड नोड का आपने विजिटेड 1 किया. अब 2 के आगे कोई चिल्ड्रन नहीं है तो आप बैक ट्रैक करो एंड 1 का नेक्स्ट चाइल्ड पे आप गए, राइट. नेक्स्ट चाइल्ड उसका है 3 को पहले विजिटेड मार्क किया, देन आगे उसके चिल्ड्रन पे गए. थर्ड का फर्स्ट चाइल्ड है 4 के जब 4 नोड के पास गए तो उसका विजिटेड 1 किया एंड हमारे पास यहाँ पे सबसे पहले हमने 1 नोड ट्रावर्स किया था, देन 2, देन 3 एंड देन 4. 4 के पास गए, उसके बाद 4 का आगे कोई चाइल्ड है नहीं, बैक ट्रैक. 3 के आगे 5 है तो आप 3 ऑलरेडी विजिटेड है तो उसको हमने कुछ नहीं करना. उसके बाद हम 5 पे गए, 5 का विजिटेड 1, देन 6 एंड सो ऑन 7. सो इसका अब कोड देख लेते हैं. सबसे पहले आप विजिटेड ऑफ दैट नोड से आप नोड को रिप्रेजेंट कर रहे हो विद एन नोड. रूट नोड इज रिप्रेजेंटेड बाय नोड. सो विजिटेड ऑफ नोड इक्वल टू 1. देन आप प्रिंट करा दो. अगर आपको प्रिंट कराने के लिए बोला तो आप प्रिंट करा दो, वरना इसी स्टेटमेंट पे आप वेक्टर में स्टोर करा सकते हो. वेक्टर में पुश कर दो नोड. सो सी आउट वी. देन आपको नोड के पूरे चिल्ड्रन पे ट्रैवर्स करना है. फॉर इंट i इज इक्वल टू 0 एंड i लेस देन array ऑफ नोड. इनिशियली नोड जो है वो आपका इंडेक्स है तो इंडेक्स 0 से शुरू होगा एरे. सो एरे ऑफ नोड डॉट साइज, उसके चिल्ड्रन का साइज एंड i प्लस प्लस. योर चाइल्ड इज एरे नोड एंड i, मतलब नोड का ith चाइल्ड. इफ विजिटेड चाइल्ड, अगर वो चाइल्ड ऑलरेडी
visited nahi hai, that is visited child equal to 0, then you call DFS traversal on that child. So this is the code. I hope you understood the code, and बाकी के concepts will be covering in the further videos. And please guys, if you like the videos, please like, share and subscribe our channel. And if there is any doubt, I'll be happy to solve it. Just comment कर देना एक बार. And thank you.